Hello everyone. Today we are going to learn about 10th class geography chapter resources and development. First of all, what is a resource? Everything available in our environment can be used to satisfy our needs provided it is technically accessible, economically feasible and culturally acceptable. हमारा इन्वायरमेंट और नेचर में हम बहुत चीज़ें देखते हैं लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, विंड, ऐसा जो ह्यूमन बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते हैं उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं. एग्जांपल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एक्सेट्रा. एक बार इधर फ्लो चार्ट देखो. ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेचर they built institutions which gives economical growth. Human beings with the help of technology and nature, they built institutions which gives economical growth. These three are interdependent in nature. Human beings interact with nature through technology which gives rise to economical development. If we discuss about classification of resources mainly divided into four parts: on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development. If we talk about on the basis of origin, it is majorly divided into two types. One is biotic resources and abiotic resources. Biotic resources means obtained from biosphere and contain life. बायोटिक रिसोर्सेस है, हम बायोस्फीयर से अपटेन करते हैं और इसमें जीवन रहता है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा. अबायोटिक रिसोर्सेस कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉट कंटेन लाइफ, मतलब इसमें जीवन नहीं होता है, प्राण नहीं होता है, इसको हम अबायोटिक रिसोर्सेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर आधारित भी दो प्रकार डिवाइड होता है. एक रेन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस. रेन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब कैन बी renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical sources. For example, solar energy, hydro energy. renewable resources मतलब हम कभी भी ख़त्म नहीं होता है. फॉर एग्जांपल हम सन से हमको फोटॉन एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस कैनॉट बी रिन्यूड इमीडिएटली. वंस दे आर एग्जॉस्टेड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. एक बार ख़त्म होते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा वो प्रोड्यूस होने के लिए. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. बेसिस ऑफ ओनरशिप के ऊपर भी चार प्रकार डिवाइड हो रहा है रिसोर्सेस. इंडिविजुअल रिसोर्सेस मतलब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का रिसोर्स है, ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल प्लॉट, कार, बुक एक्सेट्रा. कम्युनिटी बेस्ड मतलब रिसोर्सेस ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी. फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, ponds एक्सेट्रा. Our national resource, technically all the resources belong to the nation. Each and every resource, whether it is a individual resource or a private resource, every resource is related to the national resource. Please keep in your mind. Example minerals, water resources etc. And here please 22.2 kilometers means 12 nautical miles from land, also considered as national resources. International resources not owned by any specific country, regulated by international institutions. International institutions means UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब किसी स्पेसिफिक कंट्री का रिलेटेड नहीं है वो रिसोर्स, वो इंटरनेशनल रिसोर्स हम कह सकते हैं. इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल यूएनओ लाइक दैट. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी फोर टाइप्स डिवाइड होता है. पोटेंशियल रिसोर्सेस मतलब resources found in region but can't utilize due to higher expenses of technology. हम
एग्जाम्पल, हम राजस्थान और गुजरात में बहुत धूप देख सकते हैं। उधर फोटॉन एनर्जी मीन्स द एनर्जी फ्रॉम द सन बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उधर वो इक्विपमेंट के लिए बहुत खर्चा हमको लगता है। इसलिए it is usable, but it is more expensive to establish a infrastructure which is required to produce or extract energy there. That's it is comes under potential resources. Developed resources are surveyed and their quality and quantity has been determined for utilization. रिसोर्सेस ऑलरेडी सर्वे हो गया और क्वालिटी क्वांटिटी भी उसका डिक्लेयर हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ये सब ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंडर आता है। स्टॉक, नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस रिसोर्सेज बट दे कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। फॉर एग्जांपल हम वाटर ले सकते हैं, वाटर H2O का फॉर्म है। इफ वी डिवाइड H2O, it can be divided into H2 and O2. H2 means hydrogen and O2 means oxygen. हमको टेक्निकली नहीं पॉसिबल है, वो दोनों ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड दोज थिंग्स। ऐसा टेक्नोलॉजी से हम ये नहीं कर सकते, इसको हम स्टॉक बोल सकते हैं। रिजर्व मीन्स हम फ्यूचर नीड्स को हम सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल डैम वाटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर नीड्स को हम रखते हैं, इसको हम रिजर्व्ड बोल सकते हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी कैनॉट यूज देम, हम यूज़ नहीं करते हैं। हम फ्यूचर नीड्स को या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को हम वो सेव करते हैं, उसको रिजर्व्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हम सभी को पता है रिसोर्सेज हमारा डेली लाइफ में कौन सा रोल, कितना टावरिंग फिगर रोल प्ले करता है, हम सभी को पता है। लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू मेंबर्स, मतलब पैसों के लिए बहुत लोग मतलब रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करता है, वो सही नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स डिवाइडेड सोसाइटी इनटू सेगमेंट्स, मतलब एक व्यक्ति से बहुत रिसोर्सेस रहता है, एक व्यक्ति से बहुत कम रिसोर्स रहता है। इसके वजह से रिच या पुअर ऐसा दोनों सेगमेंट्स में हमारा सोसाइटी डिवाइड हो रहा है, ये भी सही नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब indiscriminate uses of these resources lead to ecological crisis. For example, global warming, ऐसा बहुत issues आता है because of indiscriminate use of resources. हम ये problems को कैसा solve कर सकते हैं? With the help of sustainable development, ये बहुत important है, please keep in your minds. Sustainable development मतलब रिसोर्स हम किस वे में यूज़ करना है जो एनवायरनमेंट को नहीं डैमेज देना है और फ्यूचर नीड्स को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। द डेवलपमेंट हैज़ टू बी इन अ वे विच देयर शुड बी नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड देयर हैज़ टू बी नो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द फ्यूचर नीड्स और फ्यूचर जनरेशन्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला थॉट कब आया? 1992 में। 1992 में एक इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ, उसका नाम है रियो डे जनेरो अर्थ समिट। ये किधर हुआ? ये ब्राज़ील रियो डे जनेरो में हुआ। ये इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। 100+ countries has participated in that Earth Summit. What is the reason behind this Earth Summit means हमारा वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या क्या इकोलॉजिकल क्राइसिस चल रहे हैं, हाउ टू सॉर्ट आउट दोज प्रॉब्लम्स, इसलिए ये मीटिंग रखा गया है। थैंक यू एंड इन फर्दर क्लासेस we will learn more about development of resources. Thank you.